Good evening, everybody. Can everyone hear me clearly? Okay, fantastic. I think this is very interesting what we are going to discuss here. Anurag and I have known each other for a very long time. And he's somebody who does believe in a lot of new ideas. But before we take on anything further, I'd like to make a point, and I think a lot of you would agree with me. This particular sector, which is real estate and housing, is like many other sectors, as we've noticed in the last 15 to 20 years in particular, has been a result of what happened to the Indian economy in 1991 and the whole post-liberalization period, the whole idea of the market opening up, and a lot of new sectors came into being. Today we are in a situation where we often talk about the whole debate of India versus Bharat, and therein comes the key element of urbanization. Everybody says that it's a process that's not going to change, particularly in the times that we are living and in the times that we are looking ahead to live. So it's not a process that's going to change very easily. And everybody needs a house. In fact, I must point out that some days ago, we were looking at some research done by an independent agency which says that the aspiration of people, the younger people today, to own a house, be it class cities or tier 2 cities, is much, much higher than probably it was 25 years ago. So they're much more keen to get a house faster. I know this sounds a little simple, but therein lies the most interesting factor about how you look at urbanization, how practical you are about it, and what you can actually achieve through it. So I'll also be very keen to listen to Mr. Jain and Anurag to say that it's very easy to do, big jargons, numbers, analysis, but how in reality, because this is the sector you all represent, how we can actually see urbanization fit into the space and how governments can also come up with their ideas to fit into it. Because I firmly believe that the growth of your industry has largely been as a result of the failure of the government sector not being able to provide quality or adequate housing. So I think that's very interesting to look at. I'll hand over the mic to Anurag now. Anurag, what would your thoughts to start with? Namaskar, good evening everyone. I think India being a young nation, young country, and today we have a large population below the age of 35 years. The average age is about 26 years, and 65% population is young. Youth being the largest stakeholder, I think has to play a very, very important role in the nation building process. But along with that comes a lot of aspirations of youth who looks for good education, employment and empowerment. I think these are the 3 E's which are very, very important for anyone in this country who we say that they are young population. When we talk about urbanization in India, I think the last 3 decades or last 2 decades, we have seen a shift in the urbanization. Maybe because of a lot of job opportunities in the urban regions. Maybe the education centers are, majority of the big institution universities are either in the tier 1 cities or in metros. So there is a natural shift or migration from the rural to urban areas. But what are the aspirations of the youth? What they desire? I come from a rural background. I come from a small state called Himachal Pradesh, and my constituency is Hamirpur, which is not like Shimla, which is like more of a rural constituency.
I look at many villages where the average population of a village will be about 300, 400. And if there is any area which has a population of about 3,000, 4,000 to 10,000, and they will have about 20 shops. For those villagers, that is the urban area where they'll go and shop, buy things, and go every month, every week to have clothes, sweets, or maybe 10 other things, or for a computer center. But when we look at look at India as a overall size of India, we see that from a state like Himachal, Uttarakhand, and other states, there is a huge shift of population towards cities like Delhi, Panipat, Gurgaon, Rewari. Why? Because of industrialization, education, employment opportunities. But when people come here, especially the youth, they always aspire to buy a home here, not to live in a rental place. But then the question comes of availability and affordability. You know, sometimes I look at the advertisement of the big real estate companies. It's more focused on those people who are looking to have a second home or for more of investments rather than the first time buyers. How many of us, like who has come from a small rural background, can actually own a house in Delhi or in Gurgaon? And what are the banking facilities? Has your industry taken any initiative to come out with cheaper loans, lower bank interest rates? Or, you know, I'm not expecting anything from this government. Let me be very clear on this. Because today, मैं आने से पहले सोच रहा था, आजकल क्योंकि हिंदुस्तान में सदा ये सुना गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, मकान एंड में आता है, पहले रोटी और कपड़ा आता है। मैं सोच रहा था आजकल रोटी कपड़े के ही लाले पड़ गए, मकान लेने कौन आएगा? मकान की दुकान तो सरकार ने पहले बंद कर दी है। The overall growth rate has come down. Look at the GDP, where we have reached today. I think there will be many questions which will arise, but I'll just take one more minute. Just to sum it up, it is very important that the real estate sector should grow. There should be more urbanization in India. Why so? It will create many job opportunities. And it is the need of the hour, I believe. We can't run away from this, this reality that we need more and more urbanization. But when we look at the city of Gurgaon, you see the tall buildings, beautiful buildings, but at the same time, there's no power supply. Look at the bad conditions of the road, choked sewerage system. You also need the help of the government. You need a visionary leadership who should also look into these gray areas. Because as a builder, they can't build roads. They can't provide 24/7 electricity. They can't provide a good sewerage system. But the government can do it, who's collecting huge funds from them, but spending on other areas rather than on those cities from where the revenue has been collected. But as a youth, I think majority of the young boys, they are looking at various facilities, education, employment, and public transport is also very, very important in the urban areas. To add to, Jain Sahab, the most important factor it seems here कि हम बात करते हैं urbanization की कि तब्दीली आ रही है. आप ये कहते हैं कि आपके सेक्टर को ना सिर्फ गवर्नमेंट्स निगलेक्ट करती हैं, आपको एक बेईमान लोगों का सेक्टर समझती है. ये परसेप्शन है, धारणा है आप लोगों के बारे में. देखिए, यही बात है कि हम और कहते एक और बोल दो, अनुराग बगल में बैठे इसलिए बोल दो, नेताओं का बहुत पैसा लगा होता है सेक्टर में. मैं बहुत बढ़िया आपने बात कही. इनफैक्ट ये लोग सोचते हैं सर. आपने बहुत बढ़िया बात करी. We say we are victim of the situation and not the beneficiary. So, what has made this perception? One is, of course, decade of 70s, when Mumbai real estate market was associated somewhat
with smugglers who were, highlighted to public at large. No, the real estate market has always been associated with people who have, out of 100 rupees, 60 black money to invest and 40 to show No, as white there I money. will differ. That's been a perception. I There think I'll you differ. can That's wrong me on this. That's what, exactly. This is what we have been speaking. That perception and reality are completely different. Across the country, barring few micro markets, we are close to power centers. Now you will understand what I want to say. Other markets are as transparent or as non-transparent as respectable industries or industrialists are. So, real estate market, non-transparent? No, it is transparent. Section 80 IB was introduced in 1998. All transactions which used to happen off the record, on the contrary, happened on the record, not off the record, but on the record. In Noida, you get, quote, 3,000 rupees per square feet, and you get printed rate list. In Pune, you get printed rate list. In Bangalore, you get printed rate list. There is no question of parallel black money, or to the extent you are saying. I am not denying completely. But political system is what it is responsible also for somewhat non-transparency in business in few micro markets. But sector as a whole is transparent, and I guarantee you, we can debate on this. I can put numbers. Anurag, a very important point I think must be raised here. When you all say and make promises, in case you actually end up forming the government at the center, हर बारी मतलब नेतागिरी की बात या नारे देना कि साहब युवाओं की बड़ी चिंता है, हमें देश की 35% के करीब आबादी युवा है. फैक्ट ये है कि आप जिस इकोनॉमिक मेस में हैं सर, और आपके पास कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है. रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो अब कंट्रोल नहीं कर सकती कि मार्केट्स और बैंक्स कैसे रिएक्ट करेंगे लोन्स को और इंटरेस्ट रेट को. तो आज कोई इनसिक्योर जॉब मार्केट में, where nobody is really sure whether he's or she is going to remain in that job, how do you actually ensure that real estate में जिसको इन्वेस्ट करना है, जिस नौजवान को थोड़ी 2 कमरे का घर चाहिए, 1 कमरे का घर चाहिए, उसके लिए एक सेक्टर में तो कोई पैरिटी हो इंटरेस्ट जो उसको देना है. वो कल को 12% पे लोन ले ले और आर्थिक हालात ऐसे हो जाए कि वो लोन चला जाए 14% पे, उसकी नौकरी भी साथ में चली जाए, वो क्या करेगा, कहाँ से देगा? मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है. जैसे जैसे देश में युवा आबादी बढ़ रही है और युवाओं की आमदन बढ़ रही है, वो हर कोई गाड़ी घर लेना चाहता है. आप देखिए, गाड़ी का इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन एजुकेशन का जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है. यही देश का दुर्भाग्य है. कुल मिलाकर देखा जाए, जब तक देश में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी, till the time we don't fix the transparency, we bring in the transparency and accountability into the system, we won't be able to achieve what we wanted to. दूसरा जो आपने इंटरेस्ट रेट की बात कही, मैं यहाँ पर सारे जितने मेरे बिल्डर्स भाई यहाँ बैठे हैं, मैं एक बात का आपको विश्वास दिला सकता हूँ. अगर हम गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पिछले 10 वर्षों में लगातार 10% से ज़्यादा विकास दर हासिल कर सकते हैं, और देश का विकास दर जो है वो 4.5% रह गया है, तब जब नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में होगा, तब हम 100% साक्षरता और 10% जीडीपी ग्रोथ को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और उसमें एक आपके सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है. लेकिन और इसका दूसरा कारण मैं बताऊं, दूसरा कारण ये है कि दिल्ली में गंगा की सफाई पर हमने हजारों करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन आज भी मैली है यमुना. लेकिन गुजरात में नर्मदा रिवर पर आप जाकर देखिए, नदी भी साफ है और उसके आसपास जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रही है वो अपने आप में दिखाता है कि अनुराग, एक सीरियस पॉइंट है यहाँ पर. हम सब जानते हैं, there are enough researchers to back this argument, back this theory, that in various situations of economic recessions, real estate is an industry that can kick-start it, help
remove the cycle of growth. But as I said, attitudinally, governments have looked down upon, both state and central have looked down upon this industry. उन्होंने इनको नीचे करके देखा है कि साहब ये क्या है, देखो इनके तो साइड में माल बहुत बनते हैं, और मैं तो साफ साफ कहता हूँ बहुत सारे नेता जिनके पैसे लगे होते हैं रियल एस्टेट में। तो कभी भी जो इज्जत इस इंडस्ट्री को चाहिए थी, जिसने सरकारों के रहते एक वैकल्पिक इंडस्ट्री खड़ी की, हाउसिंग की, घर बना कर देने की, वो नहीं मिली। तो आप लोग जब जीडीपी की बात, जीडीपी कैन ऑल्सो बी वेरी मिसलीडिंग बाय द वे, पर आप जब जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें इस सेक्टर को इंक्लूसिव नहीं ये नजर आता। देखिए, हम इस सेक्टर को इग्नोर कर ही नहीं सकते। पहली बात आपने कही नेता का पैसा लगा, अगर नेता का पैसा लगा होता तो बहुत मान सम्मान मिलता। नहीं, अगर नेता का पैसा अगर किसी नेता का पैसा लगा होता, हाँ। आप इनकी ईमानदारी की कमाई को ऐसा मत उड़ाइए। हाँ। इन्होंने मेहनत की है, जो सरकारें नहीं कर पाई आपने वो करके दिखाया है। आपने हिंदुस्तान की जनता को, आपने हिंदुस्तान की उस जनता को जो स्लम्स में रहने के लिए मजबूर हो जाती, अगर आपने उसको 2 कमरों का घर और 3 कमरों का और सिंगल रूम अपार्टमेंट भी दिया है, तो वो आपने करके दिखाया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भविष्य में आपके सामने क्या लक्ष्य है? 2030 में 590 मिलियन यानी कि 59 करोड़ लोग केवल शहरों में रहने वाले होंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या भारत सरकार की या प्रदेशों की नीतियां उस दिशा में बनी है? क्या बिल्डर्स को हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या मुंबई जैसे शहर में rather than going for a horizontal development, can't we go for a vertical thing? क्या हम उसके लिए ऊंची इमारतें और नीचे अच्छा सीवरेज सिस्टम, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, अगर आप एक हब बनाते हैं किसी शहर को, मान लीजिए गुड़गांव है, तो उसी के अंदर जब बीपीओ कॉल सेंटर्स हैं, बाकी इंडस्ट्री उसके साथ लगती है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बड़ा वाइबल होता है। मेट्रो फुल जाएगी, बसें फुल जाएगी, टैक्सी शेयर करके जा सकते हैं। अगर 50-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वाइबल नहीं होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए सरकार को इस सेक्टर में प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी सरकार आएगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विचार है, जो हमारी पार्टी का है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी बगैर किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए भी 3.5% से विकास दर को 8.5% पर ले जा सकते हैं, तो नरेंद्र भाई मोदी भी 4.5% से इसको वापस 8.5% या 9% पर लेकर जाएंगे। जब विकास होगा, कमाई होगी तो घर लेने की इच्छा जागेगी, तब आपकी बिक्री भी होगी और हमारी सरकार आपका सहयोग भी करेगी। जैन साहब, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अनुराग कह रहे हैं, आप लोगों की तरफ से मैंने एक शो किया था, उस समय बहुत फीडबैक आया था कंज्यूमर्स और आप रियल्टर्स की तरफ से मुकाबला के बाद की जो नया प्रपोज्ड बिल है, वो उसमें जब आप टाइम लिमिट की बात करते हैं तो ये टाइम लिमिट का ओनस जो है आपके ऊपर तो डाल दिया गया है, लेकिन जिन सरकारों के और सिस्टम से आप लोगों को अप्रूवल्स मिलने हैं, जिसमें टेबल के नीचे मेरे ख्याल में खाने पीने का सामान आता जाता है जल्दी जल्दी फाइलें साइन करने के लिए, ये सब रियलिटी है। मतलब मैं यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, ये सिस्टम की रियलिटी आप भी उतना जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप ये अगर मान लीजिए हम चेंज ऑफ गार्ड की तरफ देख रहे हैं, और वैसे मैंने कहा न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन में इन सब को फिर आप कैसे इंश्योर करेंगे? यही बात है कि रेरा ये एक नया विंडो ऑफ करप्शन है या सचमुच फैसिलिटेटर है, ये प्रश्न है। जो सारे स्टेक होल्डर, रेगुलेटर आप टेलीकॉम का है, एनर्जी का है, क्या है, सारे स्टेक होल्डर उसके निहित उसके अंडर में आते हैं। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ सिर्फ कंज्यूमर का फोकस है। अप्रूविंग अथॉरिटी, प्लानिंग अथॉरिटी इसमें नहीं है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इसमें नहीं है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट इसमें नहीं है, बैंक इसमें नहीं है। तो ये करेगा क्या? ये लाइसेंस देगा हमको, क्योंकि डिस्क्रिशन है, रेगुलेटर वो लाइसेंस देगा तो वो तो अपने देश में आपने जो कहा वो सिस्टम के तहत मिलेगा। तो ये नए विंडो, मैंने जो कहा कौन सा सिस्टम, ये जो आपने कहा कुछ खाना आना जाता होता है, यही होगा। सिस्टम का बड़ा लोकप्रिय नाम है भ्रष्टाचार।
तो ये देखिए, ये हम फ्रस्ट्रेटेड है, मैं आपको बताऊं। रेरा बिल आया, उसके पहले लैंड एक्विजिशन बिल भी आया। हमने आज सुबह से हमारा फ्रस्ट्रेशन जताया है। ठीक है। हम लोग, ये युवा और हम लोग, ये भ्रष्टाचारी है नहीं। आज हम त्रस्त हैं कि भ्रष्टाचारियों की डिमांड पूरी करते करते अब ऐसा समय आया है कि अब जंतर मंतर पे बैठना है। अच्छा, आप भी बैठ जाएंगे जल्दी। अब क्या करें? एक और नई पार्टी का गठन होने वाला है। लेकिन अनुराग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उस समय भी जब मैंने प्रपोज बिल को स्टडी किया था, मैंने अजय से, माकन से भी ये सवाल पूछा था कि एक बहुत सीरियस इम्बैलेंस है जिसको आप पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर एड्रेस करना पड़ेगा। कि आप बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। कंज्यूमर बहुत नाराज होते हैं, ये विज्ञापन दिखाते हैं यूरोप का और झज्जर में फ्लैट बना के टाइम पे देते नहीं। कंज्यूमर इनके बारे में ये सोचता है। उसकी वजह से उन्होंने एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया कि आप समय पर, देयर इज अ टाइम लिमिट टू इट, यू कंप्लीट विद इन दैट टाइम लिमिट, बट देयर इज नथिंग दैट इज सब्सिक्वेंटली गेटिंग फिक्स्ड ऑन द अथॉरिटीज, whether it's the environment ministry, whether it is the local administration from where you need to take permissions. How would you fix that? देखिए, शुरुआत तो यहाँ से होती है कि देश में कितने शहरों का मास्टर प्लान बना हुआ है। क्या हमने उस पर कभी फोकस किया? मास्टर प्लान के अंदर अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि अगले 30 वर्षों का हमारा मास्टर प्लान ये है, हमें ये अचीव करना है, इतनी लंबी सीवरेज लाइन होनी चाहिए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, इतनी इमारतें खड़ी होंगी, उससे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको वापस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा, वो तो इस देश में कोई वर्कआउट करता नहीं। जब तक शुरुआत वहाँ से मास्टर प्लान से नहीं होगी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस साथ के साथ मिलकर सिंगल विंडो सिस्टम नहीं आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बिल्डर की तभी कह सकते हैं जब हम अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाते हैं। वी नीड टू स्टार्ट विद बहुत मेरे ख्याल में आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अनुराग का पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन वही तो नहीं हो रहा है। ये भी, अब आप जब प्रपोज्ड बिल की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि कंज्यूमर ओरिएंटेशन इज वेरी इंटेंस विद दैट बिल। आई हैव गॉन थ्रू that. I completely understand that, but the difficulty is on the other side as well, because you don't have any inherent mechanism of fixing. Say for example, I am a builder and I go across to, I don't know, some town planner where I have to get a clearance done. Now that man sits on the file till I actually sort of provide him cookery material. So, kya karoge aap? I think that is why I said, see, it's not that difficult. Okay. There may be many out here from Gujarat and other states where they have a very transparent and effective system. Why don't you fix a time period that if this file is going to the country and town planner, he has a time period of 7 days either to reject the file or accept the file. It's very simple. Either reject or accept. There shouldn't be any second chance. If you have a transparent system, I think accountability will be fixed. Jain sir, is there a sufficient answer for you? इसमें एक सजेशन हमारा ऐसा है कि एक फाइल आती है, उस पर गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलेगा, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा, ये पहले पेज पर हो, और सर्विस अकाउंटेबिलिटी ये उस पर आए। जैसे आपने कहा, अनुराग जी ठीक कह रहे हैं कि टाइम पीरियड में उन्होंने वो फाइल अगर नहीं की है तो इस देश में इतने लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट इसके जिम्मे है, ये जवाबदार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के साइड से प्रॉब्लम ये हो या कंज्यूमर्स का, मैं आपको बहुत इंटेंस फीडबैक बता रहा हूँ कि आप अपने टाइम फ्रेम को लेकर क्लियर नहीं है, उसमें अथॉरिटीज इंक्लूडेड, लेकिन आप जो है वो खूबसूरत तस्वीर दिखा के, जैसे मैंने कहा झज्जर में प्रोजेक्ट बनेगा और नॉर्वे की फोटो लगा के फिर आप उसको बेच देते हैं। ठीक है ना, आपके पास पानी की परमिशन है ना, आपके पास बिजली की परमिशन है। जैसे अनुराग हैज बीन पॉइंटिंग आउट अबाउट द नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू डोंट नो वेयर अ रोड इज गोइंग टू कम फ्रॉम, यू डोंट नो विच वे इट विल लीड इनटू द प्रोजेक्ट। तो ये सब आप पैकेज बना के बेच देते। ये कंज्यूमर आपके बारे में कहता है कि आप उसको सपना बेच देते हैं और पत्थर आपने डाला नहीं वो बिल्डिंग बनाने का। मैं आपको बताऊं जी, आपने ये जो कहा, मुझे लगता है ये कंज्यूमर की इंसल्ट है। क्यों? मैं बताता हूँ। आज का कंज्यूमर और 10 साल पहले का कंज्यूमर फर्क है। आज का कंज्यूमर बहुत ज़्यादा होशियार भी है और उसको अब समझ है। हुआ होगा, कुछ केसेस हुए होंगे, लेकिन
रियल एस्टेट का बिजनेस एक गुडविल का बिजनेस है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। अगर किसी डेवलपर ने थोड़ा भी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया, उसका अगला प्रोजेक्ट नहीं बिकने वाला है। इसलिए ये इक्का दुक्का केसेस होते होंगे और जब मीडिया में फ्रंट पेज पे आते हैं तो वो इंप्रेशन बनता होगा, पर हकीकत वो नहीं है। हकीकत ये है, कंज्यूमर अवेयर है। हम लोग, क्योंकि हम लोग बड़े क्रिएटिव बिजनेस में हैं, बिल्कुल हम भारत में नॉर्वे, न्यूयॉर्क, लंदन बनाना चाहते हैं, हमारा बिजनेस ही वो है। तो ये क्रिएटिव बिजनेस है, हम करना चाहते हैं, हम ताजमहल बनाना चाहते हैं। वो ही ड्रीम जो आदमी मकान लेता है, मैं 10 बाय 12 की खोली से बड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि घर क्या होता है। घर एक सपना होता है, हम भी वही सपना दिखाते हैं और देखते हैं जो कंज्यूमर देख रहा है। कहीं भूल चूक होती होगी, उसका उस डेवलपर को दंड मिलता ही मिलता है, पर जो काम करता है वो ग्रो होता है। जैन साहब, इस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है कि बहुत सारे बिल्डर्स के केसेस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास है? बहुत अच्छा सवाल है। आप उस पे जाइए, आप एक लंबी लिस्ट देखें, सब मैक्सिमम बिल्डर्स का केस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास है। चेक मेरा बाउंस अपना पीए जिसने पार्लियामेंट से रिटायरमेंट ली है, एक बिल्डर से जो आपका वन ऑफ द स्पॉन्सर, आई वोंट गेट इनटू द नेम, उससे घर लेने के बाद उसके जूते घिस गए, उससे जो उसको जगह बेची गई थी, दिखाई गई थी, उससे 18 किलोमीटर दूर जाके कहते हैं वहां पे प्लॉट ले लो। अब उसके प्लॉट को कहते हैं आपको प्लॉट नहीं देंगे, आप फ्लैट ले लो, उससे 30 लाख रुपए और ले लिया। मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ जो मेरे पीए से जुड़ा है। एक एमपी के पीए से अगर उसके साथ ही हो सकती तो आम आदमी के साथ कैसे होता होगा? हर महीने कम से कम 20 केसेस ऐसे आते हैं जो बिल्डर से लोग कहते हैं पैसा वापस दिला दो या हमें फ्लैट दिला दो। ये हमारा काम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इतने वर्षों में एक तरफ आप कहते हो हम सपना बेचते हैं, लेकिन सपना आप तब बेचते हो जब आपने ज़मीन भी नहीं खरीदी होती, आप मार्केट से पैसा रेज करते हो, आपके पास लाइसेंस नहीं होता। इसीलिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास वो केस भी दर्ज है। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई नो इनसाइड द एंड आउटसाइड स्टोरी। क्या इसमें आपके जितने मेंबर्स हैं उसमें बदलाव करेंगे? क्या आपकी संस्था अपनी ओर से भी कोई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाने का प्रयास करेगी? दैट इज माय क्वेश्चन। बहुत सुंदर, जरूरी था ये सवाल और इसका मैं बिल्कुल अच्छा जवाब दूंगा। आपने बताया यदि हमारा वो कोई मेंबर है, हमारी कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल है हर क्रेडाई के हर शहर में। कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल में आप उसको अगर कंप्लेंट करें, 90, मैं विश्वास दिलाता हूँ 90 दिन के भीतर ये कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाएगा। उनकी जो ग्रीवेंस होगी वो ग्रीवेंस बिल्कुल से सॉल्व की जाएगी और आपको उसका रिपोर्ट मिलेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आपको बताऊं आजकल ब्लैकमेलर्स भी ज़्यादा हो गए। जेन्युइन केस होगी ऐसी तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्लैकमेलर्स क्या है, वो ये ढूंढते हैं कि कहाँ हम डेवलपर पर केस करें और उससे पैसा ऐंठे। तो आप जितनी इकोनॉमिक ऑफेंसेस, कंज्यूमर कोर्ट्स, ये केसेस हम एनालाइज कर लेते हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट डेवलपर के हक में आता है पूरे हाई कोर्ट तक जाने के बाद। उसका रीजन क्या है? बड़ा आसान मार्ग हो गया है पैसा कमाना, कि आप डेवलपर पर ऑब्जेक्शन ले लो, एक सूट फाइल कर लो, एक कंप्लेंट फाइल कर लो और पैसा निकाल लो। मैं ये नहीं कहता कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। उस केस की मैं आपसे, आप जब यहाँ से जाने वाले होंगे, नाम लूंगा और डेफिनेटली मेरी क्रेडाई एनसीआर की यूनिट कंज्यूमर ग्रीवेंस सो मोटो वो केस लेकर वो सॉल्व करेगी। ये मैं आपको बिल्कुल कमिट करता हूँ। नहीं, पर अनुराग ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा ना जैन साहब। वही तो उसने कहा कि आप अनुराग ठाकुर की इस मंच पर आने के बाद उनकी मौजूदगी में आप सुओ मोटो उनका केस सॉल्व करवा देंगे। आम आदमी जो आया ही नहीं इस मंच तक, वो क्या करेगा? उसी मेन जवाब तो उसी चीज का है। मैं क्रेडाई एनसीआर के प्रेसिडेंट को पूछना चाहूंगा कितनी कंप्लेंट आई, कितनी रिड्रेस हुई? हाँ, और हमने पब्लिकली ये मंगाई है कि कोई कंप्लेंट हो तो बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनफैक्ट 2 साल पहले हमारे यहाँ बहुत कंप्लेंट्स आते थे। जब से हम लोगों ने ये ट्रांसपेरेंसी लाई है, जो सिस्टम शुरू किया है, और इतना बड़ा ह्यूज क्राइसिस हुआ था नोएडा में, हम लोग सब अवेयर हैं। उस समय हमारे पास 1.5 लाख तक कंप्लेन आते थे और हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि जो भी कंप्लेंट्स आएंगे थ्रू मेल या इन पर्सन और इन राइटिंग, हम उसका तुरंत रिड्रेसल करेंगे। और जो हमारे मेंबर हैं
उनके लिए हमने कमेटी बनाई और 900 केसेस हमने पिछले 3 महीने में रिजॉल्व किया है। अनिल जी, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत वैलिड समझ रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ अनुराग के पॉइंट को। मान लीजिए आपके पास एक रैंडम नंबर दे रहा हूं मैं, 5000 कंप्लेंट आई, 5000 में से आपने ये पाया कि एक ही बिल्डर के खिलाफ 3000 कंप्लेंट्स हैं और सबसे ज्यादा विजिबल मामले उस बिल्डर के खिलाफ है। What would you do to? I mean, is there a system? I don't know. You'll have to explain. जो to हम disbar him. I have no idea. जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है उसके तहत ये है कि पहले तो हम लोगों ने आज तक कोई लाइन नहीं ड्रॉ किया, आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द कंज्यूमर और बाय एनी स्टेक होल्डर। एक हमने लाइन ड्रॉ नहीं किया कि रियली वो बिल्डर और डेवलपर है कौन। रिसेंटली जो मुंबई में हम लोगों ने केस सुना था, कई फोरम पे हमने कहा था जो डेवलपर नहीं है, 300 मीटर 100 मीटर गलती से उसको 1 एकड़ जमीन कहीं मिल गई, किसी के साथ टाई अप की और बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो क्रेडाई का मेंबर नहीं हो सकता, और वो अगर गलत करता है तो वो हमारे एम्बिट से बाहर है। लेकिन जो हमारा मेंबर है जो आप कह रहे हैं, उसको हम लोगों ने अपने फोरम से, रादर एनसीआर में हमने आउस्ट भी किया है अपने फोरम से, और ये भी थ्रेटनिंग उनको दिया है कि कंज्यूमर की तरफ से क्रेडाई लड़ेगा। अनिल जी, शुरुआत पे ये बात कही गई थी, आई थिंक अनुराग की ही तरफ से, कि उनको एक धारणा लगती है और सबको लगती है, मुझे भी लगती है, कि आपके ज़्यादा विज्ञापन उन लोगों के लिए होते हैं जो वैसे ही बड़े पैसे वाले होते हैं, उनका सेकंड या थर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसा कमाना चाहते हैं। तो जो हमारा विषय है अर्बनाइजेशन के प्रोसेस से, हाउ अ यंगस्टर इज गोइंग टू बेनिफिट और इज ही गेटिंग बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट, दैट इज वेयर दैट कैटेगरी लाइज, वेयर दैट यंगस्टर इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट स्मॉलिश प्रोजेक्ट्स. He may not be really investing in a project of penthouses. He may actually be investing. और जो आपने so that builder becomes very important who might end up cheating him. अनुराग ठाकुर साहब ने एक बड़ा वैलिड सवाल पूछा था, जो हम लोगों ने पिछले 2-4 वर्षों से, जब से क्रेडाई और क्रेडाई का जो हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है, मिशन जो चलाया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोगों ने ड्रेस्टिकली कंप्लेन को रिड्यूस किया है, ड्रेस्टिकली। और जो भी डेवलपर इस तरह के सपने या इस तरह के नाइट फ्लायर्स हैं, या तो हम लोगों ने सोशली और लीगली और या अपने फोरम से हमने उनको बाइकआउट करने की कोशिश की है, और एनसीआर उसका बहुत ही बर्निंग एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल में जो डेवलपर होंगे वो इसको एक्नॉलेज करेंगे। चलिए, इसके लिए आपको बधाई अगर आपने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये भी हुआ है कि पहले हम ज़मीन खरीदे बगैर ही माल बेच देते थे, पीछे सख्ती हुई, फिर आपको ज़मीन खरीदनी पड़ी, तब आपको लाइसेंस मिलना शुरू हुआ। एक बदलाव उसके कारण भी हुआ है। सच्चाई से हमें उसको छिपाना नहीं चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 4 महीने बाद अगर हम सत्ता में आते हैं तो आप हमारी सरकार से क्या चाहते हैं? बिल्कुल 4 रिफॉर्म्स हैं। आपको, हमारे लिए नहीं, कंज्यूमर्स के लिए ये करना है। क्या रिफॉर्म है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। इसमें क्या आ रहा है? सिंगल विंडो क्लियरेंस आपने ही बताया। 3 साल की प्रोसेस यदि 3 हफ्तों में कर ली जाए, कंज्यूमर के हाथ में 25% मकान सस्ता मिलेगा। मैकेंजी ने कहा 40%। पहला। दूसरा है लैंड रिफॉर्म। अभी आपने बताया हाई राइज बनाएंगे। सीधी बात है, ग्लोबल अर्बन रिसर्च ने कहा है कि यदि आप अर्बनाइजेशन, मेट्रो सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में अर्बनाइजेशन हॉरिजॉन्टल करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट 3 गुना बढ़ती है, ग्रीन लैंड खत्म होती है और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। आप बंबई में देख लीजिए या दिल्ली में देखिए, 2 घंटा आदमी अपने घर में जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए लगा रहा है, उसकी तो साइकोसोमेटिक डिजीज में वो आ गया, उसकी तो जिंदगी ये बिल्कुल बदतर हो गई। तो लैंड रिफॉर्म, हैदराबाद ने एफआईआर उड़ा दिया। आप देखिए, इतना बड़ा मेट्रो शहर है पर सारे बाकी मेट्रो शहर से आधे रेट में मकान बिकते हैं। तो लैंड रिफॉर्म में आप एफआईआर को, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, ग्लोबल अर्बन साइंस ने तो कहा ही है कि 5 के नीचे अगर एफएसआई होगा तो वो डिजास्ट्रस है अर्बनाइजेशन के लिए, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा कॉस्टली है, एनवायरनमेंट के लिए बड़ा कॉस्टली है, क्योंकि ग्रीन लैंड खत्म हो जाएगी। मगर उससे ज़्यादा लैंड कंपोनेंट का जो कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया पर, वो कम आएगा। तीसरा,
बैंकिंग रिफॉर्म, आप देखिए हम भीख मांग रहे हैं, 90 दिन में हमारे एनपीए हो रहे हैं। आपके इकोनॉमिक टाइम्स में आपने देखा होगा काफ़ी डेवलपर्स को एनपीए में ले आए हैं। मार्केट कंडीशन नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है। अगर मार्केट के साथ आरबीआई अपनी पॉलिसीज अलाइन नहीं करेगा तो क्या होगा? डिजास्टर होगा। दूसरा, 7.5% की ब्याज दर थी कंज्यूमर के हाथ में, आज 10.5 है। 25 से 30% जब उसकी आउटगो उसका बढ़ जाता है तो वो घर नहीं खरीदता। तो ये होना जरूरी है। उसके बाद में काफी सारे रिफॉर्म, जैसे रेंट रिफॉर्म है, रेंटल हाउसिंग है। सर होता क्या है, जब विलेजर अर्बन में माइग्रेट होता है तो हमने ये कहा कि उनको आप रेंटल अकोमोडेशन 1 रूम का पहले प्रोवाइड करो। तो 20% मकान ये शहर के आसपास बनने चाहिए जहां माइग्रेटिंग लेबर या वर्कर शुड गेट फर्स्ट अकोमोडेशन। नहीं तो क्या होगा? सिटीज विल बी स्लम सिटीज। तो ये रिफॉर्म्स करने के लिए जो एक बैकबोन चाहिए, जो एक डिटर्मिनेशन चाहिए, वो लैकिंग है। आप ये 4 रिफॉर्म करिए सर। कंज्यूमर को, वो भले छोटे में छोटा आदमी है, उसको भले 250 फुट का ही मकान मिले, पर मकान मिलेगा। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग किसको कहेंगे? मेरा परिवार 3 परिवारों का है, पिताजी, माताजी, मैं और मेरे बच्चे। मुझे 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। मेरी इनकम नहीं जस्टिफाई करती है 3 बेडरूम का फ्लैट, मगर जिस दिन मुझे 3 बेडरूम का फ्लैट मिलेगा वो अफोर्डेबल हाउसिंग होगी। तो हमारे डेफिनेशंस आज कह रहे हैं 30 मीटर का मकान बनाइए, 60 मीटर के ऊपर अफोर्डेबल नहीं है। 60 मीटर में आपके 3 बेडरूम बनेंगे नहीं। यानी आप क्या कह रहे हो, वो जो यंग एस्पायरिंग आदमी है उसकी बीवी बोलेगी अब घर से निकलो। तो आप 2 परिवारों को, ग्रैंडफादर और फादर को डिप्राइव कर रहे हो अपने बच्चे के प्यार से। अब ये क्या पॉलिसी हुई? तो हमें हेड ऑन शोल्डर रख के अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। सर सप्लाई बढ़ सकता है, सप्लाई बढ़ेगा तो रेट भी कंट्रोल होंगे। अब तो क्या कर लिया आपने, बैंकों ने फंड्स चोक कर लिए, तो अब क्या हुआ? सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, अप्रूवल कम हो गए, अप्रूवल कम हो गए, सप्लाई जब कम हो गया, डिमांड तो वही है, वो तो बढ़ने वाली। जैसे ही सेंटिमेंट बढ़ेंगे तो क्या होगा? स्पेकुलेटिव एलिमेंट आ जाएंगे। तो सर पॉलिसीज कहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग को पूरक है? नहीं है। तो यदि हम पूरी सर्वांगीण दृष्टि से इसका विचार करके पॉलिसीज बनाएंगे और ये रिफॉर्म्स लाएंगे, मैं आपको अश्योरेंस करता हूँ। एक एनालिसिस बता देता हूँ। इनकम टैक्स में 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है रियल एस्टेट से, पर जब रियल एस्टेट ग्रो करता है तो 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू इनडायरेक्ट मिल जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। अब 4,000 से 6,000 करोड़ के एग्जेम्पशन नहीं देके अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग, ये मैं नहीं कह रहा कि हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री कह रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में ये आप इतने कंसेशन दीजिए। आप 6,000 करोड़ रुपए सेक्रीफाइस करके अगर लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो टैक्स रिफॉर्म, तो ये रिफॉर्म्स कर लीजिए, देखिए क्या होता है। अनुराग, पॉसिबल है ये रिफॉर्म्स? बहुत कुछ पॉसिबल भी है इसमें से। असंभव जिंदगी में कुछ नहीं होता, सब कुछ संभव होता है। और मैं विश्वास दिला सकता हूँ जब हम आएंगे तो ना केवल रियल एस्टेट सेक्टर बल्कि ओवरऑल ग्रोथ रेट की वी कैन प्रॉमिस हियर दैट once we come we'll bring in One last point then. Do you really feel, because this is a classic case of, as I said, I started off by saying the poor post-1991 situation, that the governments have failed to look at certain sectors with the seriousness that you would look at. Say, for example, a lot of state and the central governments look at infrastructure, I think, far more seriously than they look at your sector. Yes. Why is it so? I know infrastructure is very important, road is very important, electricity, power is very important. मैं धन्यवादी हूँ, आपने प्रश्न पूछा। 1998 जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद परमाणु विस्फोट हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद वी बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट। पूरी दुनिया भर ने कहा था देखो पुट इकोनॉमिक सैंक्शंस, हमारे साथ व्यापार बंद कर देंगे। लेकिन एक मजबूत नेता था जिसने निर्णय लिया भारत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए, और उसके बावजूद हमारा यहाँ पर ग्रोथ रेट लगातार बढ़ता गया।
और जब वो सत्ता से बाहर गए उस समय 8.5% ग्रोथ रेट था। लेकिन उस दौरान क्या क्या हुआ? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया। नेशनल हाईवेज 12 किलोमीटर एक दिन में बनते थे जब हम सत्ता छोड़कर गए, आज केवल 4 किलोमीटर बनते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जितने किलोमीटर उस समय बनते थे उसका 1/3 हिस्सा आज बनता है। सर्व शिक्षा अभियान की 100% साक्षरता को हम हासिल करें, उस समय उसके लिए प्रयास किया गया। नए पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स की शुरुआत उस समय हुई, अटल जी के समय। और सबसे ज़्यादा हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ हुई है तो अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के समय हुई है, और अब वापस कभी होगी तो 4 महीने के बाद वो ग्रोथ स्टोरी वापस आने वाली है। एक आखिरी पॉइंट अनुराग, हम लोगों की बातचीत ख़त्म होने से पहले से मैंने कि अगर परसेप्शन से ये इंडस्ट्री फाइट कर रही है, इनके अपने बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको समझने की ज़रूरत है बारीकियों से। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो, मैं वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई तरीके से इस इंडस्ट्री को और ऑर्गेनाइज्ड बनाने का बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने देखा है इस मुल्क में स्मॉल स्केल सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई है, सोशल रिफॉर्म्स के एंगल से बहस हुई है। हाउ कैन यू लुक एट दिस सेक्टर बीइंग मोर ऑर्गेनाइज्ड विद द लार्जर इम्पेटस ऑफ द गवर्नमेंट? आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक एट दिस सेक्टर एज वन ऑफ द पार्टनर्स, क्योंकि सरकार हर किसी को घर बनाकर नहीं दे सकती, लेकिन वो सपना कोई पूरा कर सकता है तो ये सब लोग कर सकते हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। इसलिए सरकार को इनको अपने पार्टनर के रूप में देखना चाहिए। पॉलिसीज़ में क्या बदलाव लाना चाहिए, जो अभी जैन साहब ने बताया, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। हम छोटे सोच के साथ जब चलते हैं कि 6,000 करोड़ तक सीमित हो गए लेकिन 1 लाख करोड़ को छोड़ दिया, तो अपने आप में वो बहुत कुछ कहता है। आपने करोड़ों लोगों को घर की जो इच्छा पूरी होनी थी उससे दूर कर दिया, और जो गवर्नमेंट की किट्टी में बहुत सारा पैसा आना था, रेवेन्यू आना था, वो भी नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ने की शुरुआत होनी चाहिए। और जो 60 करोड़ लोगों को 2030 तक नए घर चाहिए होंगे, शहरीकरण करना होगा, उसमें सबसे बड़ा योगदान कुछ किसी का होगा तो इन सब का होगा और आने वाली सरकारों का होगा। इसलिए मुझे लगता है इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि रोजगार, शिक्षा के अवसर, ये सब, और ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो भी इसके साथ जोड़कर देखनी होगी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं देंगे तो शायद वो संभव नहीं हो पाएगा। मैं हिमाचल से आता हूँ, वहाँ पर हमारे 24 घंटे बिजली रहती है, गुजरात में 24 घंटे बिजली है, अब मध्य प्रदेश में भी अब 24 घंटे बिजली मिलनी की शुरुआत कर दी है, छत्तीसगढ़ में है। अगर हम अपने राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में कर सकते हैं तो मुझे लगता है दिल्ली में भी और देश में सब जगह हो सकती है। कोई ऐसा असंभव काम नहीं है। मैं एक बात सर, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर्स का फोरम है, और इतने बड़े फोरम में 157 सिटीज से लोग आए हुए हैं, और सबों ने आपकी बातें बड़ी गहराई से सुनी है। जो हमारे चेयरमैन ने जितनी बातें रखी वो बहुत विशाल नहीं है, बहुत ही संक्षिप्त है। अगर इन मुद्दों पर अगर आपने पॉलिसी डिसीजन लिया, और तो हम लोग आपको ये वादा करते हैं, ये फोरम आपसे वादा करती है कि आपको डबल डिजिट ग्रोथ जरूर देंगे और ट्रांसपेरेंसी देंगे। Thank you everyone. Thank you so much. You heard Anurag Thakur here. So if anything happens, and as far as the BJP government is concerned, Anurag was typically clever as a good politician that he is. He kept on making the point of only BJP states, only. I saw the Atal Bihari Vajpayee government very closely. So I can tell you there were a lot of problems with the Vajpayee government, which all governments have, so I'm not making that point. But Anurag's job is to push for the BJP, and so he did. And next time, if you want to recall and remember whatever was being promised or was promised at this forum on behalf of the Bharatiya Janata Party, remember every word that Anurag Thakur said here. Every word he said there. And if it is not done, make sure you call him up. Make sure you call him up and say that on this date, at this time, we met you. Thank you so much. Thank you all. Thank you.